मैं बहुत सरल तरीके से आपसे जानना चाहता हूं कि आपके एक मंत्री के खिलाफ बहुत संगीन आरोप है कि वो गंगा के किनारे सैंड माइनिंग कर रहा है, ये गैर कानूनी है। आपकी खुद की सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के अर्बन डेवलपमेंट मंत्री के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या कार्रवाई की है अपने मंत्री के खिलाफ? जी वो आप फिर क्लियर हो जाइए, आप अभी कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में जानकारी पूरी नहीं है। वो गंगा के किनारे पर नहीं है, वो कुमाऊं रीजन में रहते हैं, उनका जिला बागेश्वर है, वहां उनका सॉफ्ट माइनिंग का काम है। गंगा के किनारे पर उनका कोई माइनिंग का काम नहीं है। आप इसको क्लियर कर लीजिए, आप पहले खुद क्लियर हो जाइए, तब आपको इसके बारे में नहीं, दो अलग अलग इश्यूज हैं यहाँ पे मदन कौशिक साहब, दो अलग इश्यूज हैं। आप हमारे व्यूअर्स को कंफ्यूज ना कीजिए, बहुत दो अलग अलग इश्यूज हैं। एक इशू है जो बलवंत सिंह भुरियाल माइनिंग कर रहे हैं, वो इशू एक तरफ है। दूसरा इशू है जो हरिद्वार के किनारे माइनिंग चल रही है, वो दूसरी तरफ है। दोनों चीजें कैमरे में कैद हैं, दोनों पे रिपोर्ट्स हैं। I want to bring in over here Vijay Bahuguna, who's been listening in, and it is this attitude of the state government which seems to be so much in support of the mining mafia, which is allowing these activities to go on, Mr. Bahuguna. In fact, this is very surprising that a minister is making such a statement. In fact, if you go by the record of the state itself, the forest department had made a complaint that about 11 stone crushers were doing illegal mining in forest areas and excess of the areas. And you will be surprised that the notices were sent to these 11 stone crushers on one day, and on the same day they were rejected. It is a connivance of the local administration and the political system, and the political system in power. And as the is forest evident, officer was transferred. As is evident, and the forest officer was transferred. Now, out of these 41 stone crushers, you see, selective mining in river beds is permissible by Supreme Court, so that the flood waters don't enter the fields. But you can't use the crushers and the JCBs to take out the mineral from the river. Now, the villages which are affected at this time is Bhojpur, Banjarewala, Ibrahimpur, Sherpur and Chandpur, all in Haridwar district. And in fact, there are crushers inside the river, as you have seen. So what I am saying is that the state government, instead of taking action, lip service to Ganga, Sparsh Ganga Abhiyan, millions of rupees being spent on ads all over in India. What is this? This is nothing. You see, Mr. Jairam Ramesh had taken a very strong stand. Notices had been sent. For 18 months, you do not reply to the central government. And today what the minister is saying that today we have stopped it because of the sacrifice of Nijmanand. Today they have passed an order of the district magistrate. No, that's not correct. Because these pictures, I insist, were taken just last week where the mining is still taking place. All on paper, they have shut down. आप इतने बड़े-बड़े ऐड निकालते हैं मदन कौशिक साहब गंगा को बचाने के बारे में, देश दुनिया में आप ऐड निकालते हैं, उसी पैसा को आप गंगा को बचाने में लगाएं तो उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल होगा। नहीं, आप मुझसे पहले ये समझिए, एक सेकंड, हमारे पास इस फॉरेस्ट ऑफिसर की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट ऑफिसर है आरडी पाठक, उनकी रिपोर्ट है। कौशिक साहब बात तो सुनिए कौशिक जी, आपको बात करने का मौका भी दूंगा। आरडी पाठक की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, 11 माइनर्स को नोटिस जाता है, मंत्री फोन करते हैं, ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है, कि नोटिस रद्द हो जाते हैं। क्या ये वास्तविकता है या नहीं कौशिक जी? इस सवाल का जवाब दीजिए। पत्रावली पे मैटर ऑफ रिकॉर्ड। नहीं, आप इस इशू को एक तरफ रखिए। आप एक इशू अभी जो बहुगुणा जी ने कहा है, मैं उसके भी आंकड़े आपको देना चाहता हूं। आज हरिद्वार में जो 41 क्रेशर है, 37 कांग्रेस के शासनकाल के हैं। केवल 4 स्टोन क्रेशर के लाइसेंस हमने जारी किए हैं, जो हमारी सरकार ने जारी किए हैं। 37 इन्होंने जारी किए जो कांग्रेस के शासनकाल के 2007 से पहले हैं। दूसरी बात, निगमानंद जी का आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं था। वो आंदोलन कुंभ क्षेत्र में जो माइनिंग हो रहा था, लीगल माइनिंग हो रहा था, उसको बंद करने के खिलाफ था, हाई कोर्ट के खिलाफ था। हाई कोर्ट के खिलाफ वो आंदोलन पर बैठे थे। इसलिए बहुगुणा जी की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो लाइसेंस जारी हुए हैं, जो स्टोन क्रेशर है, वो आपने जारी किए हैं। वो राज्य सरकार जो वर्तमान है, इसने केवल 4 जारी किए हैं। बहुगुणा जी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं मिस्टर बहुगुणा। इसलिए बताना चाहता हूँ कौशिक जी, ये जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ था तब लाइसेंसेस इश्यू हुए, लेकिन इलीगल माइनिंग, एक्सेस माइनिंग, ये शिकायतें कांग्रेस के कार्यकाल शासनकाल में नहीं आई कभी हमारे सामने। आज आप पे आरोप ये है कि इलीगल माइनिंग करा रहे हैं, एक्सेस माइनिंग करा रहे हैं, अधिकारी उससे मिले हुए।
जो ये नेता हैं आपके सम्मानित दल के, इन सब के उसमें हिस्से हैं। आप उसमें जांच कराइए। मैं आपको नाम आज नहीं बोलूंगा, मैं आपसे मिलकर बताऊंगा।